और न्यूज 360 में अब रुख करते हैं उस बयान की तरफ जो मध्य प्रदेश में हो रहे रण संवाद का हाईलाइट बन गया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान जो देश के लिए नापाक इरादा रखने वाले दुश्मनों के लिए ऐलान है कि भारत युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का क्या बयान है, आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। शांति और शक्ति सुनने में तो एक दूसरे के विपरीत मालूम होते हैं, मगर है एक दूसरे के पूरक, और इस बात को साबित कर रहा है चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ये बयान। जनरल अनिल चौहान ने जब मंगलवार को मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद को संबोधित किया तो उन्होंने शांति के पाठ के साथ साथ शक्ति का सार भी समझाया। उन्होंने शांति के लिए युद्ध के महत्व को समझाते हुए देश के खिलाफ नापाक इरादा रखने वाले दुश्मनों को चेतावनी भी दे दी। India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellum," which translates, "If you want peace, prepare for war." ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं ने युद्ध पद्धति में इनोवेशन और रणनीति को लेकर राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद 2025 का आयोजन किया। इस सेमिनार में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिसमें मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद को संबोधित करते हुए भविष्य में होने वाले युद्धों की बदलती रणनीतियों के साथ उनके पीछे के कारणों पर चर्चा की और तैयारी के महत्व पर जोर दिया। The operation is still on. We are not here to discuss Operation Sindoor. We are here to discuss something beyond Operation Sindoor. So we are about to discuss about future warfare. How will they happen? This kind of thing is being held it's a kind of an academic debate, and it's agnostic of any kind of an adversary. Adversary could be anyone. And it can be taken as part of our understanding, part of our preparation for being prepared for future warfare. And over here, talking about preparation, I would like to quote again Benjamin Franklin, who famously said, "By failing to prepare, we are preparing to fail." And hence, the need for रण संवाद। रण संवाद में सीडीएस ने भारत की सुरक्षा को अटूट बनाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की। प्रोजेक्ट जो भारत को इजराइल के आयरन डोम या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तर्ज पर सुरक्षा देगा। Second aspect which I think we could discuss in this seminar is about Sudarshan Chakra, India's own Iron Dome or Golden Dome. The Honorable Prime Minister had made a mention of this on 15th of August when he spoke about Sudarshan Chakra. That will enhance India's strategic defense, and he said that he expects it to be rolled out by 2035. Over here, I think the aim is to develop an Indian system to protect India's strategic, civilian and nationally important sites, and it will act both as a shield as well as a sword. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसके बाद रविवार को डीआरडीओ ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया, जिसका जिक्र भी जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद में किया और ये भारत के लिए क्यों खास है, इसके बारे में भी बताया। 2 or 3 days back, you would have heard about DRDO testing a particular integrated system in which there were QRSAMs, V-Sharods, and 5 kilowatt lasers. Actually, they were all getting combined into one. We will have to look at multi-domain ISR, integration of ground, air, maritime, undersea, space sensors, all becoming a key necessity and integrating them. For a vast country like this, like India, a project of this magnitude will require a whole of nation approach. But like always, I am very sure Indians will do it at a minimal and a very affordable cost to us. मंगलवार को हुए रण संवाद में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ये साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वालों को नया भारत मिट्टी में मिला देगा। 2 दिन चलने वाले रण संवाद में बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। न्यूज 360 में अब खबर